dear student. How are you? Welcome back in the Rubisco Biology. Now, today we are going to our new topic is that like adrenal glands and thymus gland. Okay. Previously, we have studied about that the three glands like the thyroid, parathyroid, and the next two small glands presence in the our brain like the pineal glands. Okay, now start our new topic. First, the adrenal glands. What is adrenal glands? Where is the presence of adrenal glands? Adrenal gland is presence over the kidney. Where? Kidney. Over the kidney. This gland in a one pair. Presence in a one pair. When this gland divided or in the cross section like the two parts. First part at the adrenal medulla and second part is adrenal cortex. Okay, let's see. We draw a diagram like that. This type of diagram. When we take a cross sections of the adrenal glands, okay, means that part is known as the cortex part and that part is known as the medulla. Okay, this is these glands, its hormones is very important in concern to both neurotransmitter एंड हॉर्मोन्स है ना. दोनों की अगर बात करें अपन एग्जैक्टली तो किस तरह से ये दोनों आपके इन्वॉल्वमेंट रहते हैं बॉडी फंक्शंस के लिए. तो टू फंक्शंस आपके जनरेट करते हैं. फर्स्ट इज द न्यूरोट्रांसमीटर एंड सेकंड इज द हार्मोन. नहीं पढ़ा अपन ने पहले अच्छे से इसको. चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट दैट द एड्रिनल मेडुला. व्हाट इज एड्रिनल मेडुला? It's a modifying sympathetic nervous system. What is a sympathetic nervous system? Sympathetic nervous system is that the autonomic nervous system. That system is not under control in our body. Means अपनी बॉडी के कंट्रोल में नहीं है. अपनी बॉडी के कंट्रोल में ये सिस्टम काम नहीं करता है. ये खुद का अपना सिस्टम होता है एज लाइक smooth muscles, cardiac muscles. Okay, तो modify the sympathetic system. समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल कनेक्ट रहना मेरे से. कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए जो सेल्स रेस्पॉन्सिबल है इन द एड्रिनल मेडुला नोन इज द क्रोमोफिन सेल्स या कहेंगे फियोक्रोमोसाइट्स. These two cells are responsible for the production of hormone. अब ये बात पहले क्लियर करनी है कि कौन सा हार्मोन आपके इसमें रिलीज होगा. तो there are three types of hormone are released. The first is the noradrenaline, okay, and second is the adrenaline, and third is the dopamine. All three hormones are combinedly known as catecholamines. These three hormones are emergency hormones. So, जब आपकी emergency condition आ जाती है बॉडी के अंदर तब ये आपके रिलीज होते हैं. लाइक दैट कुत्ता पीछे पड़ गया. Then this hormone secrete into the blood and work in a target organ. Target organ कौन सा? दौड़ना है, भागना है. And resulting your heartbeat increase. आपकी हार्टबीट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. आप भागने लग जाओगे. बिना लंगड़ा भी भाग निकलेगा. वाई? ये आपकी बॉडी का कौन सा सिस्टम काम करता है? तो कहेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. आप नहीं चाहते हुए भी ये काम आपको करना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ दैट दिस सिस्टम आर नॉट कंट्रोल अंडर आवर बॉडी. ओके, चलिए
Which hormone? The first is the noradrenaline, adrenaline and dopamine. Noradrenaline secrete only 20%, adrenaline 80% and dopamine less. Commonly known as catecholamines. ये सब पढ़े अपन ने ऑलरेडी है ना, इसलिए अब ज़्यादा अपन इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, बट समझना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ऑफ दैट वी प्रिपेयर ऑफ द नीट एग्ज़ाम, है ना. अपन को नीट एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यू को फोड़ के आना है. एक ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो नीट का क्वेश्चन समझ में ना आए. ओके, चलिए. नाउ नेक्स्ट, एड्रिनल कॉर्टेक्स. एड्रिनल कॉर्टेक्स में कौन आपके तो बात करेंगे. एड्रिनल कॉर्टेक्स, दैट पार्ट, एड्रिनल कॉर्टेक्स हैव द 3 पार्ट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. या अपने एड्रिनल कॉर्टेक्स को कह सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. देखिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या कॉर्टिसॉइड्स जस्ट काउंटरएक्ट, जस्ट एंटागोनिस्टिक पाथवे ऑफ द इंसुलिन. इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड के अंदर से ग्लूकोज का लेवल कम करना. बट कॉर्टिसोल आपके इसके काउंटरएक्ट काम करता है, मीन्स वो बढ़ाता है ना. तो ये काम कौन करता है? आपके कॉर्टिसोल्स या कहेंगे काउंटर आपके कॉर्टिस्टेरॉइड्स. अब दे आर द 3 टाइप्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स. लाइक फर्स्ट इज द mineralocorticoids, second is that glucocorticoids and third is the सेक्स हार्मोन या कहेंगे एंड्रोजन्स. क्या नाम दे सकते हैं अपन इसका? मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ. क्या नाम देंगे अपन इसका? एंड्रोजन्स. क्या नाम देंगे? एंड्रोजन्स. क्लियर? ओके. मिनरलोकॉर्टिसाइड जिस पार्ट के अंदर है उसका नाम दे दिया जोना ग्लोमेरुलोसा. ग्लूकोकॉर्टिसाइड जिसके अंदर आपके जिस पार्ट के अंदर प्रेजेंस है जोना फेसिकुलेटा एंड देन दिस पार्ट इज द सेक्सुअल एंड्रोजन्स. ओके. मिनरलोकॉर्टिसाइड्स प्रोड्यूस द एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन का फंक्शन करता है, अच्छे से पता है. एल्डोस्टेरोन फंक्शन करता है, किडनी फंक्शन करवाता है. अपन ने एक्सक्रीशन चैप्टर के अंदर इसको पढ़ा है इसके आगे से. चलिए. फिर ग्लूकोकॉर्टिसॉइड्स आपके रिलीज करता है मोर कॉर्टिसोल लेस आपके डिहाइड्रो एपी एंड हाइड्रोस्टेरॉइड्स आपके रिलीज करता है. दैट्स द सेक्स हार्मोन. देयर सेकंड टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, ये सेक्स हार्मोन है. तो ये आपके लो सिक्रिएट करता है, ये मोर सिक्रिएट करता है. कॉर्टिसोल्स काम कहाँ करता है, कितने इंपॉर्टेंट काम करता है. अगर एडिपोज टिश्यू के अंदर बात करें तो क्या काम करेगा? प्रमोट द ब्रेकडाउन ऑफ द फैट, है ना. ये क्या करेगा? एडिपोज टिश्यू को तोड़ने का काम करता है. अगर ये बोन्स के अंदर आपके जाए तो क्या काम करेगा? रिड्यूस द बोन फॉर्मेशन. बोन फॉर्मेशन को रिड्यूस कर देता है. इसलिए बोलते हैं कॉर्टिसोल्स कम लेना चाहिए. कॉर्टिसोल्स कम लेते हैं. कई लोग ऐसे होते हैं फैट को बर्न करने के लिए कॉर्टिसोल्स का बहुत हाई लेवल के अंदर आपके इनटेक कर लेते हैं. उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? आपका एडिपोज या कहेंगे फैट तो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या जनरेट हो जाती है? आपकी बोन्स आपके खत्म हो जाती है, बोन्स आपकी रिड्यूस हो जाती है. ओके. लीवर की बात करें, अगर लीवर में जाएगा तो क्या करेगा? ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज जो बिल्कुल कैसा है? एंटागोनिस्टिक है. इंसुलिन क्या बनता है? वेयर इज द इंसुलिन फॉर्मेशन इन द बॉडी? सबको पता होना चाहिए. ये इंसुलिन बनता कहाँ है? लीवर में बनता है? नो नेवर. इंसुलिन फॉर्म द पैंक्रियाज, है ना. पैंक्रियाज के अंदर बनता है. लेकिन काम क्या करता है? तो कहेंगे सीधा सिंपल, ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को मेंटेन करना. ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट करना? ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करना. किसमें करना? ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करना. लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है. ये ग्लूकोज को बना रहा है, बट वेयर? इन द लीवर.
कहाँ बना रहा है ये, लीवर के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉर्टिसोल या इंसुलिन को लेके। मसल्स की बात करें अगर, व्हेन दिस कॉर्टिसोल रिच द मसल, व्हेन द एमिनो एसिड अपटेक बाय द मसल्स, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ आपके कॉर्टिसोल्स आया तो एमिनो एसिड क्या करेंगे, आपके अमीनो एसिड का डिक्रीजमेंट हो जाएगा मसल्स से। आपके पैंक्रियाज के अंदर क्या करता है ये, काउंटरएक्ट ऑफ इंसुलिन मींस दैट ये इंसुलिन का उल्टा काम करता है, आपके पैंक्रियाज के अंदर जाता है। तो इस तरह से कॉर्टिसोल्स के मोटे मोटे फंक्शन है। डिटेल में पढ़ने जाए तो अपने एक क्लास के अंदर नहीं चलेगा, आपने पढ़ा भी होगा 12th के नीट के क्लासेस के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट दी ओनली क्रैश कोर्स। अपन क्रैश कोर्स के बारे में पढ़ते थे, थोड़ा एक समराइज समझने की कोशिश कर, लेकिन डिटेल में पढ़ने जाओगे तो 2 घंटे की क्लास होती है कॉर्टिसोल पे, इतना लंबा टॉपिक है ये। ठीक है, लेकिन अपन मोटी मोटी बातें कर रहे हैं। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन में कौन सा, आपके DHEA, डाइहाइड्रो एपी एनहाइड्रोस्टेरॉइड्स है ना ये। चलिए अभी आप यहाँ कहेंगे तो यहाँ पे आपके कॉर्टिसोल्स का लेस फॉर्म के अंदर सिक्रेशन होता है ना। चलो, तो ये इस तरह से अपन ने एड्रिनल ग्लैंड को थोड़ा समझने की ट्राई की, किस तरह की एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, कहाँ प्रेजेंस होती है, ये सब बातें कि कौन कौन से पार्ट से डिवाइडेड रहती है। अब इसी के थ्रू एक ग्लैंड आपकी बॉडी में और काम करती है, जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्लैंड इन कंसर्न टू द इम्यून सिस्टम। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम किस टाइप का, ये डिपेंड करता है थाइमस ग्लैंड के ऊपर। अब आप बुढ़े हैं तो आपके अंदर थाइमस ग्लैंड क्या हो जाती है, साइज छोटी हो जाती है। अगर आप हेल्थ यंग है तो बड़ी रहेगी। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी साइज जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे इसकी साइज छोटी होती रहती है, और इससे आपके जो इम्यून सिस्टम है वो भी आपके डिक्रीज होता जाता है। ठीक है ना। चलिए, ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, कहेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। पढ़ा है सभी ने ये, कहाँ प्रेजेंस होती है, कहेंगे मेडिस्टेनियम में। वेयर इज द मेडिस्टेनियम, इन बिटवीन द स्पेस इन बिटवीन द अओर्टा एंड स्टर्नम, आपके बिल्कुल लंग्स के दोनों के बीच में है ना, जहाँ हार्ट है उसके अपर साइड के अंदर अओर्टा के। तो यहाँ प्रेजेंस होती है, कौन से हार्मोन रिलीज करती है, थाइमोसिन, THF थाइमोसिन ह्यूमरल फैक्टर, TF thymosin factor and thymopoietin, and these hormones are responsible for the understanding to how to promote and how to mature lymphocytes। अब देखिए ये अपन को क्लियर समझना है, इम्यून सिस्टम में इसका इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है ये समझते हैं। देखिए ध्यान से अच्छे से क्लियर करना। सपोज दैट इज द बोन मेरो, ओके, हाँ वैसे यहाँ हो ही जाएगा। दैट इज द बोन मेरो, बोन मेरो, ओके। बोन मेरो प्रोड्यूस द सेल्स नोन एज द लिम्फोसाइट्स। बट अपन क्या है एग्जैक्टली पूरे ब्लड सेल जितने भी है सब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बोन मेरो के अंदर ही होता है, लेकिन अपन केवल बात कर रहे हैं आपके लिम्फोसाइट्स की। तो लिम्फोसाइट्स क्या बन गए आपके, सॉरी, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स क्या बने, दीज लिम्फोसाइट्स, ध्यान देना, दीज लिम्फोसाइट्स आर टू टाइप्स, B lymphocytes and T lymphocytes. When these lymphocytes are mature in the bone marrow known as the B lymphocytes. Lymphocytes are two types. When lymphocytes are mature in the bone marrow known as the B means bone marrow, B lymphocytes. But T lymphocytes mean that when the lymphocyte travel along with the blood capillary to the thymus gland, the thymus gland के वहां पहुंच जाए, और the thymus gland में गए, that is the cortex and that is the medulla। इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। हियर
फर्स्ट जो लिम्फोसाइट्स है वो सीधे कहाँ जाते हैं, आपके कॉर्टेक्स के अंदर, थाइमस कॉर्टेक्स में, और यहाँ पर मैचुरेशन होता है, प्रोसेसिंग होता है। तो यहाँ पे केवल 2% इस कॉर्टेक्स के अंदर ओनली 2% ही आगे मैच्योर हो पाते हैं, और 98% जो लिम्फोसाइट्स है जो हसाल कैप्सूल के थ्रू, किसके थ्रू, हसाल्स कैप्सूल्स के थ्रू उनको डिजनरेट कर लिया जाता है। मीन्स ओनली 2%, कितना कंपटीशन है, ओनली 2%। एंड द फॉरवर्ड टू द मेडुलर पार्ट है ना, मेडुला के वहां केवल कितने जाएंगे, 2%, और 98% हसाल कैप्सूल्स के थ्रू है ना, हसाल्स लेयर के थ्रू इसको क्या कर लिया जाएगा, डिजनरेट कर लिया जाएगा या डिस्ट्रॉय कर लिया जाएगा। अब जो इसके अंदर जो आपके एंट्री की वो केवल कितने परसेंट है, 2%, और यही 2% आपके फर्दर मैच्योर होके बोला जाता है, अपन इसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट फर्दर यहाँ से कहाँ जाता है, आपके टारगेट ऑर्गन तक जाता है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है थाइमस ग्लैंड में। किस तरह से आपके कहेंगे कि लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है ना, कैसे आपके इम्यून सिस्टम के अंदर ये इन्वॉल्वमेंट है। ये जैसे अपन पढ़ेंगे, नई इम्यूनिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब तो बहुत अच्छे से इनको डिटेल में और देखना है अपने को। ओके, बिल्कुल पढ़ते रहिए। और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा, लेकिन 15 डेज़ का ही आपको टाइम दिया जाएगा। सो प्लीज़ है ना, बिल्कुल कनेक्टेड रहे, अच्छे से पढ़ते रहे। ओके, बाय, टेक केयर।